سعدیہ اور سعود ایک محلے میں پلے بڑھے اور پروان چڑھے۔ ان کی محبت بالکل انگور کی جنگلی بیلوں کی طرح تھی، ایسی صاف ستھری دوستی جیسے بہتی ندی کا شفاف پانی ہوتا ہے۔ آخر گھر والوں کو بھی سنگن ہو گئی۔ سعود کی ماں سعدیہ کی امی کی سہیلی تھی، ان کا بچپن بھی ساتھ گزرا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں باتیں سنی تو آپس میں صلاح مشورہ کرنے بیٹھ گئیں۔ ایک نے دوسری سے کہا، بہن زمانہ ہمارے بچوں کے بارے میں باتیں بنا رہا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی بے پر کی اڑائے کیوں نہ ہم سہیلیوں کے ساتھ سمدھنے بھی بن جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ ماں اور خالہ کی زبانی سعدیہ نے بھی یہ فقرہ سنا اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، اس کا بھی سارا وجود مسکرا اٹھا۔ تبھی اسے ہر شے مسکراتی نظر آنے لگی۔ آج تو سونے آنگن میں لگی کیاریوں کے پھول بھی ہنستے مسکراتے لگ رہے تھے۔ اسی روز سعود ٹرے لے کر آ گیا جس میں باداموں کا حلوہ تھا اور خالہ نے بہت اہتمام سے بھیجوایا تھا۔ امی کچن میں تھی، سعدیہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور بے اختیار ہنس دی۔ تب وہ بولا، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اگر بتا دوں گی کہ کیوں ہنس رہی ہو تو تم بھی ہنسنے لگو گے۔ یہ کہہ کر سوال کا انتظار کیے بغیر وہ شرماتے ہوئے بولی، تمہاری میری شادی ہو رہی ہے نا؟ میں نے اماں اور خالہ کو یہ کہتے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ تو واقعی خوشی والی بات ہے۔ یہ کہہ کر سعود بھی خوشی سے ہنس دیا۔ وہ سعدیہ کے گھر روز سودا سلف پہنچانے آیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا۔ سعدیہ کے والد اور بھائی دونوں ہی سعودی عرب کمانے کی خاطر گئے ہوئے تھے اور سعود سے کہہ گئے تھے کہ ہمارے پیچھے تم گھر کا خیال رکھنا، جبکہ اس کی ماں کی ہدایت بھی تھی کہ دن میں ایک بار خالہ بطول کے گھر ضرور چکر لگا لیا کرو اور وہ جو کام کہیں کر دیا کرو۔ اسی بہانے وہ روز ان کے گھر آتا۔ تب ماں سعدیہ کو کہتی، بیٹا سعود کو کھانا دو۔ وہ انکار کرتا مگر پھر کھانے بیٹھ جاتا اور ساتھ ساتھ خالہ سے باتیں کرنے لگتا۔ باتوں باتوں میں وہ ضرور ایسی بات بھی کر جاتا جس سے سعدیہ چڑھتی تھی۔ خالہ جان سعدیہ کو اب پڑھنے سے اٹھا لیں، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اسے گھر سے باہر نہ بھیجا کریں۔ ارے بیٹا، اسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، روکوں گی تو بھی نہیں مانے گی۔ خالہ بطول روز ہی ایک سا جواب دیتی اور سعدیہ غصے میں کہتی، سعود تم کو میری پڑھائی سے حسد کیوں ہے؟ تم یہی چاہتے ہو کہ میں جاہل رہ جاؤں؟ ہاں تو تم نے ایم اے پاس کر کے بینک میں نوکری کرنی ہے کیا؟ ہاں کرنی ہے نوکری، تم بن جاؤ بینک آفیسر، تب میں نہیں کروں گی نوکری۔ اس پر وہ جاتے جاتے آستہ سے کہتا، تم نے بینک کی نہیں میری نوکری کرنی ہے شادی کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا دروازے سے نکل جاتا۔ جانے کون سی گھڑی کیسی ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ منہ سے بری بات نہیں نکالنی چاہیے۔ سعدیہ نے بھی نہ جانے کیسی گھڑی منہ سے یہ بات نکالی کہ ہاں کرنی ہے بینک میں نوکری۔ گریجویشن کرتے ہی یہ بات پوری ہو گئی۔ اس کے والد اور بھائی سعودیہ میں اس وقت ایک ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ جب وہ ایک تعمیراتی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے حرم شریف میں ایک کرین کے نیچے کھڑے تھے، وہاں حادثہ ہو گیا جس کی زد میں آ کر اور بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ یہ خبر بجلی بن کر ماں بیٹی پر گری۔ ایک تو والد اور بھائی کی ایک ساتھ وفات کا غم، پھر وہ رقم بھی بند ہو گئی جو ہر ماہ بھجواتے تھے۔ اس کی دو چھوٹی بہنیں اسکول میں زیر تعلیم تھی اور بھائی ابھی چھوٹا تھا۔ یوں سارے کنبے کا بوجھ سعدیہ پر آ پڑا۔ کہاں تو مائیں بیٹی کے جہیز کے جوڑنے ٹانگنے کی فکر میں تھی اور کہاں اب ہر وقت اخبار آگے کر کے کہتی، بیٹی ذرا ان اشتہاروں میں دیکھ، شاید کہیں نوکری نکلی ہو تو درخواست دے دے، کیا خبر ملازمت مل جائے۔ اماں، صرف درخواستیں دینے سے نوکری نہیں ملتی، اس کے لیے سفارش چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا پھر بھی تو درخواست دے دے، مجھ کو تیرے بیاہ کی اتنی جلدی نہیں ہے۔ ادھر سعود برسر روزگار ہو چکا تھا، اس کی ماں بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کو خواب دیکھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے نوکری بھی اس کے مطلب کی ملی اور وہ بینک میں آفیسر لگ گیا۔ اس کے ایک دوست کے باپ کا بینک بڑے عہدے پر فائز تھا، لہٰذا اس کو زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑی، لیکن سعدیہ کو اب بھاگ دوڑ ہی کرنا تھی۔ ایک روز اس نے حجاب ایک طرف کر کے کہہ ہی دیا، سعود تم ہی کوئی کوشش کرو۔ امی جان چاہتی ہیں کہ میں کچھ عرصہ نوکری کر لوں تاکہ وہ ہمارے بیاہ کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر سکیں۔ سعود جانتا تھا کہ یہ بیاہ کا تو بہانہ ہے، اصل تو مالی مجبوری ہے۔ وہ اس گھر کے ایک ایک راز سے واقف تھا۔ بہرحال اس نے اپنے آفیسر سے کہا، انہی دنوں کچھ اسامیاں نکلی اور اس نے کوشش سے سعدیہ کو بھی اسی بینک میں ملازمت مل گئی جہاں وہ خود کام کر رہا تھا۔ وہ خوش تھی کہ ان کا ساتھ جڑا ہوا تھا، دونوں ایک ہی برانچ میں کام کر رہے تھے۔ بطول خالہ کے گھر میں مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سعود نے شادی کا تقاضا چھوڑ دیا تھا۔
चढ़ते दरियाओं पर बांध बांधना कितना मुश्किल होता है, ये कोई मलाह ही बता सकता है। सादिया ने अपने कुंबे को माली सपोर्ट देने की खातिर और सऊद ने इसकी खातिर उम्र का काफ़ी हिस्सा इस आस में निकाल दिया कि मसाइल पर काबू पा लेंगे तो एक हो जाने के बारे में सोचेंगे। इन्हें क्या पता था कि मसाइल तो झाड़ के कांटों की तरह होते हैं, वो कम नहीं होते। आदमी सारी उम्र बस सोचता रह जाता है, एक तरह के मसले ख़त्म हो जाएं तो कोई और मसाइल उठ खड़े होते हैं। यूँ समझना चाहिए कि बस इसी का नाम ज़िंदगी है। ऐसा ही इन प्यार करने वालों के साथ हुआ। सादिया की छोटी बहन ने मैट्रिक कर लिया तो मुलाजमत करने या आगे तालीम जारी रखने के बजाय महल्ले के लड़के से दिल लगा लिया। शुक्र हुआ कि लड़के के माँ बाप शरीफ लोग थे। जो ही इनको पता चला वो लड़की की घर रिश्ता लेके आ गए। वो खाला बतूल के दुख दर्द से वाकिफ़ थे, इनको मज़ीद दुखों से बचाना चाहते थे, जबकि लड़का अभी शादी की झंझट में नहीं फंसना चाहता था। लेकिन माँ बाप ने खतरे को महसूस करते हुए इनको शादी के बंधन में बांध दिया था। यूँ एक बड़ा बोझ सर से उतर गया था। सादिया और उसकी माँ ने सुख का सांस लिया। राशिदा से छोटी मलका अभी 8वीं में थी। माँ का ख्याल था कि ये लड़की संजीदा और हमदर्द दिल वाली है, मैट्रिक कर ले तो इसके टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करवा देंगे। ये किसी स्कूल में उस्तानी लग जाएगी तो सादिया की शादी कर दूंगी। तब तक छोटा बेटा तुफैल भी बड़ा हो जाएगा तो सऊद से सिफारिश करवा कर इसकी नौकरी लगवा लेंगे। भूली खाला बतूल जी नहीं जानती थी कि ज़माना कितना आगे निकल गया है। अब मैट्रिक पास के लिए नौकरी एक लाहासिल कोशिश है। खैर माएँ बेचारियाँ तो क्या नहीं सोचती। वो सादिया से भी कहती, बेटी तूने बड़ी कुर्बानी दी है, बस अब मंजिल करीब है। तुफैल की नौकरी होते ही हमारे घर के बखेड़ों से आज़ाद हो जाएगी और मैं तुझको तेरे घर का कर दूंगी। सादिया की छोटी बहन मलका सबसे तेज़ निकली। 2 साल 8वीं जमात में फ़ेल होती रही। इसके बाद इसने वही चाल चलन इख्तियार किया जो राशिदा ने किया था, मगर ये तीर निशाने पे ना बैठ सका। लड़का धोखा देकर गायब हो गया और मलका पढ़ाई छोड़कर सोगवारियाँ मनाने बैठ गई। इस तरह सादिया की उम्र के 3 सुनहरे साल और आगे की तरफ खिसक गए। उधर सऊद के वालिदैन और ख़ुद सऊद भी सादिया और इसकी माँ की लंबी प्लानिंग से थक गए थे। अब सऊद का रवैया पहले जैसा ना रहा था। इसका आना जाना खाला बतूल के घर कम होते होते तर्क तलक तक आ गया था। वो अब अपना ज़्यादा वक्त न जाने कहाँ गुजारने लगा था। सादिया इससे पूछती तो वो इधर उधर की बातें कर दिया करता था। पहले दोनों साथ ऑफिस आते जाते थे, अब वो इलादा आने जाने लगा था। तब सादिया ने भी गवारा न किया कि इसरार करके इसके साथ जाए। इसकी गैरत ने गवारा ही न किया क्योंकि सऊद की आले ओहदे पर तरक्की हो चुकी थी और इसका कहना था कि स्टाफ इस बात को मयूब ख्याल करता है कि इसके मातहत इसके हमरा आना जाना करें। इस तरह लोगों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत घटती जाएगी। सादिया ने भी सोचा कि बात तो ठीक है, इंतज़ार तो मैंने ही इतना ज़्यादा करवाया है। वो मेरी खातिर अपनी खुशियों से दूर रहा, फिर भी अभी तक शादी से इनकार नहीं किया। 8 साल की तवील मुद्दत गुजर गई चुकी थी। सऊद का तबादला दूसरी ब्रांच में हो गया था। सादिया के सर में कहीं कहीं सफ़ेद बाल आने लगे थे। तुफैल ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया तो सऊद ने इसकी मुलाजमत लगवा दी। खाला बतूल की कमर अब झुकने को आ रही थी। वक्त दबे पाँव मगर बे आवाज़ गुजरता गया। भला आखिर मलका की भी शादी हो गई, तमाम फ़राइज़ अदा हो चुके थे। अब सादिया ही माँ के साथ घर में बाकी रह गई थी। अब वो हर वक्त संजीदगी से अपने बारे में सोचती थी। इधर सऊद आला ओहदे पर पहुँच कर इस कदर मसरूफ़ हो गया कि वो हफ्तों इसकी एक झलक देखने को तरसने लगी। भला आखिर वहीं इससे मिलने को जाने लगी और तकाजा करने लगी कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो समझती थी सऊद इस बात पर खुश होगा कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुईं। वो वक्त आ ही गया जिसका इसे बेसब्री से इंतज़ार था। इसका ख्याल था कि यूँ ही मैं इसे इस शादी का कहूँगी, वो फ़ौरन तारीख की बात करेगा। मगर सादिया को इस वक्त बड़ा धचका लगा जब इसने बेकरारी दिखाने के बजाय बेनियाजी और सर्दमोरी से काम लिया। सादिया को लगा कि वो टाल मटोल से काम ले रहा है। वजह पूछी तो भला आखिर इसने कहा कि पहले तुम्हारे हालात ठीक ना थे और अब मेरे हालात ठीक नहीं रहे। अब्बा जान को कारोबार में नुकसान हो गया है, मेरी सारी तनख्वाह घर में खर्च हो जाती है। कुछ दिन गुजर जाने दो, मैं इतनी रकम इकट्ठी कर लूँ कि हमारी शादी धूमधाम से हो जाए, तभी इस मसले को छेड़ेंगे। इस दौरान वो सादिया से मिलने लगा था, लेकिन असल बात न बताता था कि इसने छुप कर शादी कर रखी थी, जिससे इसके घर वाले भी वाकिफ़ ना थे। वो ऑफिस से सीधा ससुराल चला जाता,
रात 11-12 बजे तक बीवी के पास रहता, फिर घर आ जाता। माँ से कह रहा था कि वो एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। इधर हाला बतूल ने भी सऊद के घर वालों से शादी का तकाजा शुरू कर दिया। जब घर वालों की तरफ से दबाव बढ़ा तो सऊद ने सादिया से कहा, सादिया बात यह है कि मुझे बाहर जाने का चांस मिल रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ रकम दरकार है, तभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं जल्द कोर्स मुकम्मल करके वापस आ जाऊँगा और तुमको दुल्हन बनाकर साथ ले जाऊँगा। सादिया को तो इस पर अंधा एतमाद था। वो बोली, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? 5 लाख। तब 5 लाख एक बड़ी रकम हुआ करती थी। वो शशोपंज में पड़ गई। कुछ सोचने के बाद वो बोली, तफैल नौकरी पर लग गया है, अगर मैं अपनी तनख्वाह जमा करती रहूं तो 4 साल में इतनी रकम जमा हो जाएगी। क्या तुम इस वक्त तक इंतज़ार कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं तो चांस का इंतज़ार कर रहा हूँ, मगर चांस मेरा इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ 6 माह का वक्त है, फिर फीस जमा करानी होगी। बैरून मुल्क जाने के लिए बैंक बैलेंस भी शो करना होता है, इसका भी इंतज़ाम रखना होगा। मैं पहले ही लोन ले चुका हूँ, तभी तनख्वाह से रकम कट जाती है। दोबारा लोन नहीं ले सकता, क्योंकि बैरून मुल्क जाकर अगर मौके अच्छे देखे तो नौकरी से इस्तीफ़ा भी दे दूँगा। हाँ, ये हो सकता है कि तुम बैंक से कुछ लोन ले लो, मैं बाद में लौटा दूँगा। ठीक है, सादिया ने कहा, तुम जिस हद तक लोन दिलवा सकते हो दिलवा दो। मेरी जो जमा पूंजी है वो सब ले लो। मेरी साल भर की तनख्वाह भी होगी। मुझे उम्मीद है कि इतनी रकम इकट्ठी हो जाएगी कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। साल भर सादिया ने मेहनत की, पाई पाई जोड़कर और कुछ बहनोई से कर्ज लेकर 5 लाख सऊद को दे दिए। वो बहुत हैरान हुआ। वो समझ रहा था कि 5 लाख का सुनकर सादिया खामोश हो जाएगी। बहरहाल रकम लेकर वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। दरअसल वो बैंक की जानब से बैंक के ही खर्चे पर 2 माह के लिए ट्रेनिंग पर गया था। जब लौटा तो दूसरे शहर तबादला करवा लिया और बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया, जबकि सादिया समझती रही कि वो बैरून मुल्क में है। अफसोस कि सऊद ने इसे झूठा आसरा दिया था, जबकि इसने अपनी तमाम जमा पूंजी इसके कदमों में रख दी थी। इसे 1 साल बाद सऊद के घर वालों से पता चला कि वो बैरून मुल्क से आ गया है, अब दूसरे शहर में है। वो बहुत कम घर में आता है। सादिया की कुर्बानी रहेगां गई थी। कर्ज उतारने की खातर इसे ज़िंदगी की मामूली आसाइशों को भी अपने ऊपर हराम करना पड़ा। ज़िंदगी की गाड़ी आस्ता आस्ता आगे को खिसकती रही। यूं ही पाई पाई जोड़ते कर्ज भी उतर गया। लेकिन इसके बाद सादिया को रकम जमा करने की ऐसी आदत पड़ गई कि वो कोड़ी कोड़ी और ढीला ढीला जोड़ती रही। कपड़े पुराने हों या बदरंगी से परवाह न होती। सैंडल घिस जाते, जूती टूट जाती, वो मोची से टांके लगवाकर फिर से पहन लेती। सहेलियाँ इसकी हालत देखती तो इनको अफसोस होता। वो ज़बरदस्ती नई जूती लाकर पहना देती। घर में सालन पका होता। अगर भाभी का मूड देने का होता तो सादिया चटनी से रोटी खा लेती और कभी भूखी सो जाती, मगर अपने लिए कुछ खरीद कर ना खाती। बरसों फ्रूट ना लिए। ऑफिस में बस में जाती, हालांकि अब तनख्वाह इतनी थी कि सहूलत से गाड़ी खरीद सकती थी, ड्राइवर रख सकती थी। वो अब ऑफिसर बन चुकी थी। माँ समझाती कि क्यों अपने ऊपर खर्च नहीं करती, किसके लिए रकम जोड़ती रहती हो। ये रुपये अगर आज तुम्हारे काम ना आए तो कल किस काम के आएंगे? तुमने उम्र भर मेहनत की है, अब अच्छी ज़िंदगी गुजारने का वक्त आया है तो इतनी किफ़ायतशार क्यों हो गई हो? बखीलों को पीछे छोड़ दिया है। माँ के बार बार कहने पर आखिर एक दिन इसने दिल की बात बताई। बोली, माँ, मैं ना पागल हूँ, ना बखील और ना कंजूस। दफ्तर में मेरा सादा हुलिया देख कर कोलीग हंसते हैं, मगर मुझे परवाह नहीं है। मुझे तो बस बहुत से रुपये जमा करने हैं, क्योंकि मुझे बैरून मुल्क सऊद के पास जाना होगा। ऐसा ना हो कि वक्त पर रकम कम पड़ जाए। जब खाला बतूल ने ये सुना तो इनकी आंखों से टप टप आंसू बह गए, क्योंकि इनको तो खबर थी कि जिसका वो इंतज़ार कर रही है, इसने तो कभी इनकी बेटी को बिहाने को आना ही नहीं था। वो अपना घर बसा चुका था, बाल बच्चों वाला हो चुका था और अपने वालिदैन को भी लेके जा चुका था। इनका मकान बिक गया था। कई बार माँ सादिया को ये सब बता चुकी थी, मगर इसे यही लगता था कि ये सब झूठ है। वो अब भी सऊद का इंतज़ार कर रही थी। कहती थी कि सब लोग इसे बददिल कहने को ऐसा कहते हैं। सऊद ऐसा नहीं है, वो कभी इसे धोखा नहीं दे सकता। इंसान भी बाज़ औक़ात किस कदर मजबूर हो जाता है। वो खुद फरेबी के सहारे ज़िंदा रहना चाहता है, अपने दुख अपने ख्वाबों में छुपा लेता है, क्योंकि अगर ये ख्वाब भी खो जाएं तो बाकी क्या रह जाता है।